السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب معاہدہ ابھی شروعات ہے۔ خطے کا دفاعی تعاون نیٹو کی طرز پر ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون سالہ پر محیط ہے۔ دفاعی معاہدہ کوئی نئی بات نہیں۔ کچھ اور دوست ممالک نے بھی معاہدے میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ نیٹو طرز پر تمام ممالک کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ مزید بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ طارر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اوورسیز پاکستانی سے خطاب میں آپریشن بنیاد مرصوص معیشت اور صفاتی تعلقات پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب آج دوپہر نشر کیا جائے گا۔ دیکھیے، ایک تو آپریشن بنیاد مرصوص کی انہوں نے بات کی، اکنامک ریکوری کی، ڈپلومیٹک ریلیشنز کی، کل دوپہر کو ایز لائیو چلے گی، بٹ آئی تھنک اوور آل ویری سکسیسفل ماشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اون چودھری نے کہا ہے کہ لندن میں ہونے والے اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن سے وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی خطاب کیا۔ اوورسیز پاکستانیز بڑی تعداد میں آئے اور اوورسیز پاکستانیز نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو جو فتح ملی، اسے دنیا میں ملک کی عزت بڑھی۔ ملک کی دنیا بھر میں عزت پر پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ پاکستانیوں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور پاکستان ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا حوصلہ افزائی کی اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ آج انہوں نے پاکستان کا نام، جو پاکستان کا مستقبل ہے، انشاءاللہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور آج اس تاریخی دن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ جو پاکستان کو فتح ملی، پوری دنیا میں عزت ملی، اس پہ پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ پاکستان کے ان پاکستانیوں کو بھی مبارکباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر ساجد طارر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ پاکستان کے لیے مفید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے پر دونوں ممالک کے مابین تجارت سمیت دفاع کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ لندن میں ہونے والی تقریب میں اوورسیز کی کثیر تعداد میں شرکت خوش آئند ہے۔ فیوچر کے اندر آپ کے اس ریجن کے اندر ٹریڈ کی باتیں ہوں گی۔ میرے خیال میں ٹریڈ ہے، ڈیفنس ہے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ امریکہ از لوکنگ فارورڈ ٹو آفر مور ڈیفنس اکوپمنٹس ٹو پاکستان۔ اس طرح کی چیزیں سائن ہوں گی، مزید ٹریڈ کی باتیں ہوں گی، ریجن کے بارے میں باتیں ہوں گی کہ میں نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ دنیا ری کیلیبریشن کی طرف جا رہی ہے اور سارے سائنس دے آر گوئنگ ان ٹو دا فیور آف پاکستان۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ روایتی حریف پھر آمنے سامنے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج پھر میدان میں اتریں گی۔ پاک بھارت میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ کے لیے ٹکٹ کم سے کم 27,000 پاکستانی روپے میں دستیاب ہیں۔ پاک بھارت ٹاکرے سے قبل قومی ٹیم کی اہم بیٹھک، کھلاڑیوں کا بلے بازی میں ناکامی کا اعتراف۔ مشاورت کے بعد آج کے میچ میں کی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا کہ موجودہ کنڈیشنز بیٹرز کے لیے آسان نہیں۔ سنگلز اور ڈبلز کے ذریعے سکور بورڈ کو متحرک رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی متحرک کھلاڑیوں سے ملاقات، حوصلہ بڑھایا۔ ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، حتمی فیصلہ میچ سے قبل ہوگا۔ قومی ٹیم نے موٹیویشن اسپیکر کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ ڈاکٹر راحیل احمد قومی ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ ایشیا کپ 2025 کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ قومی ٹیم نے دبئی کی ICC اکیڈمی میں بھرپور پریکٹس کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے حوصلہ افزائی کی۔ آج کے میچ میں قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا بھی امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دبئی سے نمائندہ ABN نیوز ارشد ملک سے۔ جی ارشد، بتائیے گا۔ میں اس وقت ICC اکیڈمی میں موجود ہوں، جہاں پر پاکستانی ٹیم نے نیٹ پریکٹس کی اور یہاں پر PCB کے چیئرمین محسن نقوی بھی یہاں پر آئے۔ انہوں نے ٹیم سے ملاقات کی اور ٹیم کی حوصلہ افزائی کی اور میچ کے حوالے سے خصوصی ڈسکس کی۔ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق ٹیم میں ایک تبدیلی متوقع ہے۔ حسن نواز کی جگہ طلعت حسین جو پلینگ 11 کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان ایک اہم میچ ہے، جو کہ پاکستان پہلا میچ انڈیا سے ہار چکا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک بار پھر دونوں ٹیمیں دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ دیکھتے ہیں کہ سپر 4 مرحلے کا پہلا میچ کون اپنے نام کرتا ہے۔ آج پاکستان اور بھارت دوبارہ آمنے سامنے ہوں گی۔ پوری پاکستانی قوم پاکستان کی جیت کے لیے پورا امید ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی ٹیم محنت کرے تو پاکستان ضرور جیتے گا۔
पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है नफसियाती दबाव में आ जाती है। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। उम्मीद तो है कि कल वाला आने वाला मैच अच्छा हो, लेकिन जो टीम है वो इसके लायक तो नहीं है। मैं पाकिस्तान टीम से पूरी उम्मीद हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। दोबारा से मैच है, हमने पिछले मैच का बदला भी लेना है। तो अगर बाबर और रिजवान होते तो मैच और अच्छा होता, लेकिन अब फखर और साइम है तो इंशाल्लाह हम इंडिया की टीम से थोड़ा प्रेशर कम लें कप्तान साहब, तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान हमलावरों को मौसर जवाब देता है। तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मार्के हक से बात वाज़े हो जानी चाहिए कि अच्छी खबरें आ रही हैं, हुकूमत तारीफ़ की मुस्तहिक है। आज हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं कि आने वाले सालों में हमने कहाँ पहुँचना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान की साख बनी है। कारोबारी तबका पाकिस्तान की साख बनाए। जिस चीज़ का वादा किया जाए वो बाहर ज़रूर भेजी जाए ताकि पूरी दुनिया हमारी साख की कायल हो। आलम इस्लाम का दिफा पाकिस्तान का ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 10,000 3 माह बाद मिलते हैं, जो कि काफ़ी नहीं। हुकूमत को चाहिए कि इसकी जगह मुस्तकिल रोज़गार और तरबियती प्रोग्राम मुहैया करे। सऊदी अरब पे हमला जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा और पाकिस्तान अपने ऊपर जारहियत और हमला करने वालों को जो जवाब देता है वो मार का हक के जवाब से जो है वो उन्हें इस बात की समझ आ जानी। अच्छी खबरें जो हैं जो है वो जिस दौर में आती हैं मैं समझता हूँ कि उसमें काम करने वाले भी जो है वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको भी जो है वो एप्रिशिएट किया जाए या उनकी इस बात को जो है वो एक्नॉलेज किया जाए। हम अपनी किस्मत आज खुद लिख सकते हैं। हम खुद इस बात का तयन कर सकते हैं कि आने वाले 3-5 सालों में हमने कहाँ पे पहुँचना है। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहिदा अभी शुरुआत है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ और दोस्त ममालिक ने भी मुआहिदे में शरीक होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। खित्ते का दिफाई ताउन नेटो की तर्ज पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन साल हर साल पर मुहित है। नेटो तर्ज पर तमाम ममालिक का एक इत्तेहाद होना चाहिए। अगर एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन साल साल पर मुहित है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई माहिदा अभी शुरुआती मरहले में। ख्वाजा आसिफ ने कहा वक्त आ गया है उम्मत मुस्लिमा अपने दिफा के लिए एक हों। इस वक्त गाड़ी शहबाज शरीफ चला रहे हैं लेकिन गाड़ी डगमगा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट 88 में गुफ्तगू कहा कि अगर इत्तेहादियों को बड़े फैसलों में शामिल ना किया गया तो हुकूमत का मुस्तकबिल मशकूक है। उन्होंने कहा कि पाक सऊदी माहिदे से पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। हम हुकूमत का हिस्सा हैं। अपने इत्तेहादी से पूछूंगा। इस्लामाबाद में किसी पोस्टर पर आसिफ जरदारी की तस्वीर नज़र नहीं आई। आईनी ओहदा लेना हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होता। ये तो मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक मैं इसका जवाब क्या दूँ। मेरे लिए ये खुद सवालिया निशान है। मैं खुद अपनी पार्टी से भी पूछूंगा और मैं जो सो कॉल्ड हमारे इत्तेहादी हैं उनसे भी पूछूंगा। हम हुकूमत का हिस्सा होते आईनी ओहदे तो जो इतना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़े काबिल इज़्ज़त काम हुआ है जो हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। आपको इस्लामाबाद में किसी पोस्टर पे आसिफ अली जरदारी की तस्वीर नज़र आई? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। पंजाब हुकूमत सियासत न करे, अपने लोगों की मदद करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। कहा कि सैलाब मुतासिन के लिए नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। ज़राई कर्जे और बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, ये हम सब का नुकसान है। सैलाब मुतासिन की तमाम हुकूमतें मिलकर मदद करें। बुनेर में सैलाब से शदीद तबाही हुई। सारी सियासी जमातें फलाही कामों के लिए आगे बढ़ें। मैं पंजाब की हुकूमत से अपील करूंगा, सियासत नहीं करनी, अपने लोगों की मदद के लिए जिसको भी बुला सकते हो बुलाओ, पहले से कि देर हो। सब लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने कंस्टिट्यूएंसी बुनेर में जब मैं गया 240 अफराद हमारे शहीद हो चुके थे, 120 ज़ख्मी थे, 1470 दुकानें तबाह हो चुकी थी, 875 घर तबाह हो। पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। मदद उनको राशन के फार्म में भी चाहिए,
मेडिसिन के फार्म में भी चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का झूठा बयानिया बनाया। आपने वोट चोरी करके हुकूमत बनाई है, चैलेंज मंजूर है। न्यूट्रल अंपायर के साथ साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, तमाम इत्तेहादी एक हो जाएं, हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। नून लीग अगर कॉल में सच्ची है तो सिर्फ 10 नशिस्तें जीत कर दिखा दे। अवामी मैंडेट लेना है तो शफाफ इलेक्शन के जरिए लें। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि हरमैन शरीफैन से जुड़ा माहिदा रियासत से रियासत का है, इस माहिदे पर सियासत ना की जाए। पाकिस्तानी अवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। नवाज शरीफ जो कि कभी कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और उसका झूठा बयानिया इस वक्त दुनिया के सामने है कि जिन्हें आवाम से जबरदस्ती वोट चोरी करके हुकूमत बनाई है, इसके बाद इस डिटाई से आप बात करते हैं तो ठीक है, आपकी चैलेंज मंजूर है। आए इलेक्शन करवाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, न्यूट्रल एम्पायर हो। आप तमाम सियासी पार्टियां कि हम पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान तमाम जितने भी वसाइल है वो हरमैन शरीफैन की। नाज़रीन, सैलाब से मुतासर इलाकों में वापस आने वालों को नई परेशानी ने घेर लिया है। किसी का सामान चोर उड़ा ले गए, जो बचा वो सैलाबी पानी से ख़राब हो गया। फसलें भी तबाह हो गई। मुतासिन का हुकूमत इदारों से फौरी रिलीफ और बहाली के इक़दाम का मुतालबा। असां जदा वापस घरन लौटे आना जी, कोई सामान तो साडा चोर लाए गए, कोई लोड गया सामान साडा, बाकी सामान जड़ा बचिया खुचिया असां खुले सामान तले रखते बैठे हैं। लिहाजा अस अपील करे ने हुकूमत पंजाब नू साडी मदद करन। सारे घर यक्का ढाए गए, यक्का असां हुण कर भी नहीं थे सकते। सारी की मजदूरी मेहनत सारी कई नहीं। असां बैठू थे में पानी दे वे, सारी ना घर है ना हवेली है, ना कोई दाने ना कोई चीज है, सारी कोई चीज भी कहीं नहीं। बा साडे हवेलियां ढह गए, साडे मकान ढह गए। कोई बंदा हुकूमत दा ई टाइम तक साडे कोल नहीं आया। साडे नाल हुकूमत अगो अपील है, साडे नाल तामन कीता वने। कोई रिलीफ सानू नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। ना ही कोई इधर कोई आए ने कैंप लाने वाले, ना ही कोई मैडिकल दी टीम आई है, ना कोई साडे नू रिलीफ मिला है। घर जेडे डिगे ने उन्हां वास्ते कोई रिलीफ दिता जावे, इमदाद की जावे। 15 दिन तकरीबन हो गए हैं सैलाब आए हुए। कोई बंदा इधर सरकारी या गैर सरकारी कोई बंदा भी इधर इमदाद के लिए या राशन वगैरह भी नहीं पहुंचा। रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से भी और अपने मुखैर हजरात से भी वो इधर आएँ और लोगों को इमदाद दें और राशन वगैरह पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासिन की बहाली के लिए अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम कर दिए गए हैं, जहां इमदादी सामान की तरसील और बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुसलसल जारी है। मुतासर इलाकों में कोटला आकर फ्लड बंद के नवाही देहात अजमतपुर, बैट मलावाली, बस्ती कंडराला, बैट नूरवाला, लालवाला, टिब्बा टियावाली और बैट चन्ना और पेपलवाला में खाने और इमदादी सामान की फराहमी की गई है। इसी तरह खान व ब्लड बंद के करीब लंगड़ा और मसीफोर, कंदाई, कोटला, गुलाम शाह और सरकी में भी मुतासिन को खुराक और ज़रूरी अशिया मुहैया की जा रही हैं। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं, जहां डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद है। मुतासिन को सुबह, दोपहर और शाम खाना और मिल्क पैक, मच्छर मार अद्वियात और साफ़ पानी भी मुहैया किया जा रहा है। सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें भी मुतहरिक हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स और अवामी नुमाइंदे फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा कर रहे हैं ताकि सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पंजाब भर के सैलाब ज़दा इलाकों में साफ पानी की फराहमी के लिए टैंकर रवाना किए गए हैं। पाक सऊदीया दिफाई माहिदा तारीख साज इक़दाम। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी भी खुशी से निहाल। पीपल्स पार्टी गल्फ की इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मालिक की क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। दुबई से अरशद मलिक की रिपोर्ट। दुबई में मुनक्किदा तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मीर आमिर मक्सी, नूर मक्सी और दीगर का कहना था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये दिफाई मुआहदा इस बात की दलील है कि पूरी दुनिया हम पर भरोसा कर रही है। दुबई के मकामी होटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इशाइया तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मीर आमिर मक्सी, सदर पीपी गल्फ मियां मुनीर हांस, नूर मक्सी, सदर PYO चौधरी फारूक बानिया समेत जयालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अहम कदम करार दिया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना होंगे। इजराइल ने जिस तरह का हमला किया कतर के ऊपर, तो ये चीज सामने रखते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया ने उसको लब्बैक करके आपस में मिलकर
इस चीज़ को सामने लेकर आएंगे। खुदा ना खास्ता अगर कभी भी कोई ऐसी वारदात या कोई ऐसी जारियत होती है, उसे पाकिस्तान शाना बशाना अपने गल्फ कंट्री भाइयों के साथ खड़ा है। जब से इन्होंने सियासत शुरू किया है या नादर मक्सी साहब ने सियासत शुरू की, पहला दिन और आखिरी दिन आज पीपल्स पार्टी में है, यही एक वफा का सबूत है कि हम इंशाल्लाह जब भी रहेंगे तो पीपल्स पार्टी में रहेंगे। तकरीब में मेहमानों को सिंधी सकाफत की पहचान अजरक और गुलदस्ते पेश किए गए और नूर मक्सी को पीपी गल्फ में अहम जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। कैमरा टीम के साथ हर्षद मलिक, ABN न्यूज, दुबई। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज।